जिंदगी का तमाशा देखो। जैसे रात सपना जो तुम देखते हो, आंख खुल गई छुट्टी, ऐसे ही ये जिंदगी है। तुम ज्ञान की अपनी आंख खोल लो, सब छुट्टी। जैसे छोटे बच्चे जब आप थे, कोई डॉल थी आपके पास? है सी कोई गुड्डी खेडन वास्ते? है कोई गेंद सी खेडन वास्ते? किन्नी चंगी लगती सी, डॉल नू नाल ही सवा लेंदे सी अपने। अज किथे हो? राइट? जब बच्चे थे तो वो डॉल कितनी प्यारी लगती थी, वो टेडी बेयर कितना प्यारा लगता था। वो बुरी सी शक्ल का गंदा गंदा सा खिलौना स्टफ टॉय होगा, पर बच्चा ऐसे लेके उसको घूमता रहता है, सोएगा भी उसी के साथ, खाएगा भी, बातें भी करेगा। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तो पता ही नहीं कहाँ गए। तो अपनी अकल को बच्चा ना रहने दो, इस अकल के बच्चे को बड़ा करो। तो फिर सारे संसार का ये जो खिलौना है ना, इससे फिर मोह मोह कुछ नहीं रहने वाला। जैसे वो बच्चे की जो डॉल है वो आज भूल गई, बच्चे की वो जो कारें होती थी छोटी छोटी, वो कारें बड़ा हो जाए तो भूल गई, पता ही नहीं कहाँ पर हैं। ऐसे ही ये सारा संसार भुलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही छूट जाता है। थोड़ी समझ को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, विवेक को बढ़ाओ, बी वाइज। कंवल का प्रश्न है कि कंवल तिलक का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तिलक ऑन फोरहेड? इन sect wise, it is also used to identify that which sect you belong to. Like if it is a Vaishnava, meaning Vishnu devotee, then they have a different styled tilak. If it is a Ram Bhakt, they have different. If it is a Krishna Bhakt, they have different. And if you are a Shiva Bhakt, then they have Tripund, the 3 lines, and in the center they have a red big mark. So one explanation is that it explains what sect you are following, right? Second is, from yogic point of view, this point in between our eyebrows, this point just above the bridge of the nose, the root of the nose, this point is the 6th center of energy in your body. There are 7 centers, so this is the 6th center, which is called the Agya Chakra. It's a very sensitive point, very, very sensitive point. So if you apply chandan on this point, see, if you ever come to ashram, then sometimes we prepare the chandan for everybody, and then everybody is given that chandan to experience what it is. When you have the mark of chandan at this point, what happens is this place gets kind of activated. Your attention will automatically go towards this direction. If you are a yogic meditator, only then, otherwise no, nothing will happen. So when your focus keeps on confirmed at this point, we are putting the mind at this point, 2 things happen. The energy will awaken. 2, your mind will stop wandering, going here and there. Like here, people have the dogs on a leash.
Say if they want to go in a shop, they will tie the dog with some pole. Right? So mind is the dog and this is your pole. Right? So when we make our mind to be focused on this one point, the thoughts will recede. And the application of attentiveness on this point can be much easily done when you have the sandalwood tilak on your forehead. See, we don't need the tilak. Can you bring your right finger? Sare log karo. Bring it just close to your forehead. छुआना नहीं, स्पर्श नहीं करना, बस बहुत नजदीक रखो. Can you feel something? ऐसे नहीं रखना, जैसे it should point towards that forehead. Point. जो अंगुली का ये जो पोटा है, सिरा है, ये आपके माथे के साथ एकदम उसको चिपकाना नहीं, लगाना नहीं, बस बिल्कुल करीब उसको रख दीजिए. जो कुछ महसूस होए तो हाँ कर लेना, हाथ हटा लेना और थोड़ा हाँ में सिर हिला देना कि भी हाँ हुआ, कुछ महसूस हुआ, समथिंग. तो अगर आपने इस जगह में तिलक लगाया हो चंदन का, तो क्या होगा, जैसे जैसे चंदन सूखेगा ये जो स्किन है वो अकड़ने लग जाएगी. तो फिर यहां पर ध्यान रखने के लिए ऐसे अंगुली रखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाएगा. आप अभी इसको करिए. यहां अंगुली रखें भ्रू मध्य पर, इसको भ्रू मध्य तीसरा नेत्र भी कहते हैं. सूफी लोग इसको तिल कहते हैं, तिल. यहां रखें और सांस गहरी लें. लंबी सांस लें और छोड़ें. और भावना ये करें कि सांस सीधे माथे तक जा रही है. भावना करें, कल्पना करें कि सांस जब आप लेते हैं तो वो माथे तक जाती है और फिर माथे को छू के जैसे वो बाहर जाती है. When you inhale in, feel as if the air is reaching the mid of eyebrow and then coming out from there. Although, yes, we are breathing through nose in and out, but you need to just visualize that when you inhale, the breath goes all the way to mid-eyebrow, touches that, and then comes out through nose out. सांस नाक से ले तो रहे हैं, पर ऐसे महसूस करें जैसे वो छू के माथे को, इस तीसरे तिल को, और फिर बाहर आती है.
समझ लगी? समझ लगी? इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं और योग में इसको गुरु स्थान भी कहते हैं। बोले गुरु का स्थान ये है पूरे शरीर में, बोले ये है आज्ञा चक्र भी इसको कहते हैं, माने जहां से कमांड आते हैं। और साइंस में देखें तो प्री फ्रंटल ब्रेन का एरिया है, वेयर ऑल द एक्टिव थिंकिंग इज हैपनिंग। सो वी यूज दिस अपनी मानसिक शक्ति, मानसिक बल बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते। तो जब आप तिलक लगाते हैं तो साधना करने में सुविधा हो जाती, पर आप इसको बिना तिलक लगाए भी कर सकते हो। और लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा है, नहीं लगाएं तो कुछ देर इस तरह से मदद ले लें और फिर कुछ समय बाद छोड़ दीजिए उसको। फिर बिना हाथ रखे ऐसे ही बैठे अंदर से आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं, सांस गहरी भरते हैं, सांस गहरी छोड़ते हैं। अब सांस तो यहीं से इन एंड आउट हो रहा है, पर हम अपनी कल्पना शक्ति से, धारणा से महसूस ये करेंगे कि जैसे यहां तक सांस आई है, यू नो, एज इफ इट इज गोइंग इन फ्रॉम हियर एंड कमिंग आउट फ्रॉम हियर। वी आर टारगेटिंग दिस पॉइंट एंड यूजिंग आवर माइंड टू डू दिस, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी रोज इसको करने लग जाए, मतलब बैठे और ध्यान यहाँ पर और सांस गहरी, तो बहुत जल्दी तुम्हारा मन ठहर जाएगा, मन रुक जाएगा। दूसरे, मन की शक्तियां बढ़ने लग जाती, संकल्प की शक्ति बढ़ने लग जाएगी। You'll have more confidence. You'll have more willpower. So those who feel that they are weak in this area, those who feel that they have less confidence, they should do this. भारत में देखो पुराना हजारों सालों का ये ट्रेनिंग है और एक्सपेरिमेंट है कि महिलाओं के यहाँ तिलक जरूर लगाते थे, राइट? क्यों? और खासकर अगर आप मंदिर जाते हैं तो तुमको तिलक जरूर देते हैं। अभी तो पंडित जी लगा देंगे, उनको नहीं पता वो क्यों लगा रहे हैं, और चेले लगवा लेंगे, उनको भी नहीं पता वो क्यों लगवा रहे हैं। बट एक्चुअली वो इसलिए है कि जब यहाँ लगाएंगे तो स्त्री क्या है, स्वभाव से नर्म होती है, वो सेवा में लगती है, वो प्यार करती है, वो बिछ जाती है। बाप, भाई, माँ, बहन, कल शादी हो जाए तो पति, फिर बच्चे हो जाएं, तो वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और फिर दूसरे सब अच्छे लोग नहीं होते हैं, तो महिलाओं में अक्सर कमजोरी होती है मन की। ऐसा नहीं कि प्यार करना कमजोरी है या सेवा करना कमजोरी है, लेकिन उसका मन बड़ा कोमल होता है और फिर वो जल्दी दुखी भी हो जाती, फिर वो अपने आप को बहुत वीक, बहुत कमजोर महसूस करती। भारत के ऋषियों ने कहा अगर महिला यहाँ तिलक करे और ध्यान करे, सिर्फ तिलक लगाने की बात नहीं है, यहाँ पर वो ध्यान अगर करती है तो धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर आज्ञा चक्र का क्षेत्र है, तो आपकी आज्ञा देने की शक्ति बढ़ जाती, मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। सो स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही इसकी जरूरत है, तो दोनों को ही करना चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त योग की एक साधना है। पर जिनको योग का कुछ पता नहीं, वो सिर्फ इसको कि हम किस पंथ से हैं, कि हम, जैसे मुझे कई बार जैसे कुंभ में हम गए तो कईयों ने पूछा आप किस संप्रदाय से हैं। मैं क्यों पूछते हो? कहते हैं जैसे आज ये छोटी सी है, कभी हमारा वो लंबा वाला तिलक रहता है, कहते कभी आपका कोई तिलक होता है, कभी को, तो आप किसके हो? मैंने कहा किसी के भी नहीं है, हम सबके हैं और
किसी के भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। सिंपल हैं, सबके हैं, किसी के भी नहीं। एक ने कहा नहीं आप तिलक लगाते हो तो ये तो हिंदू लोग तिलक लगाते। मैं अच्छा चलो फिर हमको हिंदू समझ लो तुम। कहते पर आप तो शब्द इतने अच्छे गाते हो, आपको सिख हिस्ट्री इतनी पता है। मैं चलो फिर मेरे को सिख मान लो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं। संप्रदायों में, धर्मों में बटे हुए लोग असली चीज समझते नहीं है कुछ भी। तो आप तिलक लगा के ये साधना करो, बहुत अच्छी बात है। आप तिलक ना लगा करके ऐसे ही इसको करो, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो फ्री चॉइस है सबको। अब हमारे चेले नहीं लगाते, है ना, देखो सबके माथे सूने हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल चॉइस है। हमने कभी इनको नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं लगाते, पर हमको अच्छा लगता है, हम लगाते। ये नहीं लगा तो मैं फ्री, स्वामी है वैसे तो। अब स्वामियों को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, जो करें बाबा, है ना। सो तिलक इसलिए लगाना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अवधि का है कि जब भी मैं बैठती हूँ तो सिर बड़ा भारी हो जाता है और लगता जैसे पीछे को गिर रहा है, और धीरे धीरे फिर रुक भी जाता है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, गर्दन में कोई दर्द नहीं है। मैं सिर हमेशा सीधा रखना चाहती हूँ पर अपने आप पीछे की ओर चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है अवधि, इट्स ऑल फाइन, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। समटाइम्स द energies are flowing in that direction, and because you are not a seasoned yogi, hence you are unable to hold that posture. If you do regularly your yoga asanas, then there is a possibility that all the energies are rising and nothing is moving. But if head is moving backward, nothing to worry about, it's okay. जैसे हम जब कुछ अच्छा सुनते हैं, कोई म्यूजिक अच्छा सुने तो ऐसा ऐसा हिलने को मन होता है, तो ये कोई बुरी बात थोड़े हो, तो मजा आ रहा है अंदर, इसलिए ऐसे ऐसे करता है वो। तो जब आप बैठती हैं, अभ्यास करती हैं, ध्यान करती हैं, मजे आ रहे, मस्ती चढ़ रही, गए पीछे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शरीर गिर ही जाए पूरा, तो भी कोई बात नहीं। मस्ती में है, मन जुड़ गया है, तो शरीर हिले तो भी ठीक, नाचे तो भी ठीक, झूमे तो भी ठीक। क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि हमेशा एकदम पत्थर की शिला बन करके बैठे रहो और हिलो भी नहीं। मुझे लगता है अगर मन अंदर झूम रहा है तो हिल लो, कोई गुनाह थोड़े हैं, कोई गुनाह नहीं है इसमें। और खूब मजे लेने चाहिए।